नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगदल आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है, वह मात्र राजनीति कर रही है, यूटी खादर। अजीज खान का युवती को सहारा देने का मामला जोरों पर। असंतुष्टों को झटका, येडियुरप्पा को राहत, कर्नाटक में सीएम नहीं बदलेगी भाजपा। कर्नाटक में 11 जिलों में एक सप्ताह बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। कर्नाटक 25 लाख से ज्यादा संक्रमितों ने दी कोरोना वायरस को मात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पूर्व मंत्री यूटी खादर ने कहा, भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है, वह मात्र अपनी राजनीति कर रही है, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यूटी खादर बिदर शहर के केपी न्यूज चैनल के संवाददाता डॉक्टर एम मसूद से विशेष तौर पर दिए इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए भाजपा सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा, घोषणा किए गए किसी योजना को सरकारों ने अब तक कुछ भी लागू नहीं किया है। आइए सुनते हैं यूटी खादर ने क्या कहा। So now they have increased. So what do you tell about this? What they have increased now? They have all the schemes they have decreased, and usually they have cancelled the schemes what was there by the Congress government, and whatever they have, few are there also. The central share also has been decreased. Before it was 80% central government, 20% state government. Now it is exactly 80% state government, 20% central government. They have decreased, and the few they have eliminated, and no project as newly as bought. Today only one thing project which in the rural areas during COVID time which is useful, that is Narega. That was bought up by the UPA government. When Narega was bought into the fore and the act was done, this BJP people and BJP opposition leader used to criticize the Congress government. So Regarding they have increased during this lockdown, they have increased the tariff of Gescom also, that is electricity, 30% per unit they have increased. What do you say? Because already people are worried for the heavy tariff, but still they are increased. See, in India we have got Loot India and Sale India government. Loot India government means they tax on everything. Tax on petrol, tax on electricity, tax on water, tax on empty property. Wherever they get a chance, they put a tax. Everything they put a tax. That is the tax, indirectly looting the people of India and running their government. Sale India, they are selling all the property which was owned by the government or semi-government, which is a dream of the Congress party, where there should be social sector. Now they are given privatized airport, they privatized railway station, privatized the electricity, privatized the petroleum. So they are selling each and everything. And unfortunately India is, see, nationalization means Congress was for nationalizing bank, nationalizing of the industry, bus nationalization, everything was there. What is nationalization? Opening the main door of an organization, institution, and giving an opportunity to enter for each and every one and take their right, whatever they are about to get. That was nationalization by Congress. What is privatization, which is support for BJP? Close the front door and open the back door, and whom you want you call, and you give them whatever they want and deprive the general public. That is privatization. Biggest disaster in this country is who has done nationalization and who are for nationalization, they tell anti-national. And who is going privatization, they call him as national hero. This is the biggest, until the people come out of this mind or out of this mindset, I think India will have a difficult time in the days to come. Sir, regarding the changing of the CM that was raised recently in BJP for the Karnataka CM, so what do you think whether it will happen? See, changing of the CM is left to their party. For the situation and politics what they are playing during this COVID time, it's not good for any political party in this country. This will give a bad image in the mind of the people, and people are also aware of this. During COVID time, entire country is fighting against the COVID, and here they are fighting between each other. And one side they say Karnataka BJP government is doing very good,
And other, they say it's not correct, chief minister should change. If the government is doing good, then why they have to change the CM? And the High Command also are playing hide and seek with the state BJP. So ultimately, state BJP and central government, both are not interested in the public interest. They have got only political interest. So this unlocking is fair enough, or it should not happen? Because according to the recent information, there are many elections in other states and all. So that's they are showing the COVID cases have been decreased. And previously, when the elections get over, the cases increases. So what do you think? See, locking and unlocking. Lockdown is the lockdown. This lockdown we got because we failed to take the advantage of the previous lockdown. Lockdown is not a medicine for COVID. It is a time space given for us by the people sitting at home to prepare all the medical facilities and other minimum what is needed for a COVID patient or to manage the COVID. In the first phase, they failed. They couldn't get one ambulance also. People sat for 3 months and 3.5 months at home, and they couldn't get ambulance or till now ventilator on the second phase. And when the first lockdown was done, it was only 3,000 cases per day. Now the second lockdown they are doing, like 3 lakhs per day. 3,000 only couldn't control COVID. Now whether 3 lakhs per day can control this lockdown. Lockdown is a time to make arrangements. It will lessen for time being. Now we need an unplanned lockdown and planned exit lockdown. When you lockdown, you should have a plan. One day coming before just declaring lockdown won't give anything. Tomorrow coming today and tomorrow telling lockdown open, go everywhere, no use. So the government should give an exit plan. How the lockdown will be cleared systematically, and that exit plan should be presented by the government. बिदर के विधायक रहीम खान के छोटे भाई और रूही शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अजीज खान के एक युवती को अपने घर वालों के खिलाफ बहकाने का मामला पिछले 24 घंटों से तूल पकड़ा हुआ है। यह मामला सोशल मीडिया पर किसी जंगल की आग की तरह फैल रहा है। दरअसल विधायक रहीम खान पिछले कई दिनों से अपने शब्दों को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। वहीं अब उनके भाई का एक युवती को बहकाने का आरोप चलने से विधायक रहीम खान का नाम अधिक उछल रहा है। लोगों का कहना है कि अजीज खान किस अधिकार के तहत उस युवती को सहारा दिए। लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं युवती के मामा सैफुल इस्लाम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक जाकर शिकायत करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विधायक रहीम खान द्वारा राशन किट बांटने का मामला भी विवाद के घेरे में आया है। खान द्वारा कल शहर की मेन रोड पर जास्मीन शिक्षण संस्था की बस में राशन किट भेजकर बांटा जा रहा था। लोग किसी भी बात की परवाह किए बिना सड़क पर उमड़ पड़े, जिसमें सामाजिक अंतर की धज्जियां उड़ाई गई है। इस बात पर भी लोगों में आलोचना की जा रही है। इस विवादों के कारण विधायक रहीम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को बदले जाने से साफ तौर पर इनकार किया। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिंह ने कहा कि येडियुरप्पा मुख्यमंत्री है, वे अच्छा काम कर रहे हैं और वे पद पर बने रहेंगे। महामारी के दौर में भी उन्होंने और सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया है। अरुण ने कहा कि येडियुरप्पा से त्याग पत्र मांगने को लेकर आलाकमान स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने येडियुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल को बदले जाने की चर्चाओं को अफवाह व काल्पनिक करार दिया। कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ सरकार ने गुरुवार को राज्य में सीमित अनलॉक की प्रक्रिया 14 जून से शुरू करने की घोषणा की। हालांकि अधिक जांच पॉजिटिविटी दर वाले 11 जिलों में 21 जून तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन राजधानी बेंगलुरु सहित बाकी 19 जिलों में सीमित अनलॉक शुरू हो जाएगा। अनलॉक के तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के साथ ही कारखानों को भी कुछ शर्तों के साथ परिचालन की अनुमति दी गई है। ऑटो, कैब और टैक्सी सेवाओं को भी सीमित सवारियों के साथ परिचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि अनलॉक के दौरान रात्रि कर्फ्यू के साथ ही सप्ताहांत कर्फ्यू भी जारी रहेगा।
राज्य में शुक्रवार को कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 4.86% हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसे 5% से कम करने का लक्ष्य रखा था, जो अनलॉक के लिए जरूरी है। राज्य हर दिन के साथ अनलॉक के दूसरे मानदंड की ओर बढ़ रहा है, जिसके अनुसार कोविड के दैनिक मामले 5000 से कम होने चाहिए। राज्य में गत 24 घंटे में कोविड के 8049 मामले सामने आए। इससे पहले 13 अप्रैल को 8778 मरीजों की पुष्टि हुई थी। राज्य में अब तक संक्रमित कुल 27,47,539 लोगों में से 25,11,105 लोगों ने कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग जीती है। रिकवरी दर 91.39% पहुंच गई है। संक्रमण से उभरे 14,975 लोगों को शुक्रवार को छुट्टी मिली। बीजापुर शहर में रहे इब्राहिम रोजा कब्रिस्तान में आईपी ग्रुप द्वारा साफ सफाई की गई। ग्रुप के युवाओं ने कब्रिस्तान में रहे जंगली पौधे और कचरे को साफ किया। इस कार्य को देखकर कांग्रेस नेता हमीद मुशर्रफ ने इम्तियाज पटेल सहित ग्रुप के युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि वह युवा अच्छा काम कर रहे हैं। रोजे कब्रिस्तान में 6 दिन से काम चला था, आज फाइनल होता है। इम्तियाज पटेल और जावेद शाली हुसैनी दरगाह के मोहल्ले के और रहीम नगर के इब्राहिम रोजे के भी आए। सब भी मिला को ये कब्रिस्तान बहुत अच्छा नौजवान हमारे पूरा साफ कर रहे हैं। ऐसा अभी 1 2 3 कब्रिस्तान अभी 3 कब्रिस्तान है। वो तो शाहपुर दरवाजे के वहाँ कमेटी है, एक मुर्तुज कादरी है, एक अब रोडग्याक मोड्डी तो साफ है। अब ये 2 कब्रिस्तान बहुत तैयार था, ये दोनों साफ हैं। इनका तय दिल से हमें शुक्रिया करते हैं। सब भी मिला को काम कर रहे हैं। ऐसा ये कहाँ भी जाओ लास्ट को यहाँ चाहना है। तुम्हें भी तुम्हारे कौन सगे रहंदे, माँ भान रहंदे, बाप रहंदे, चिच्चा रहंदे, ताया रहंदे, कौन भी रहे तो भी उनके आको तुम्हें तुम्हारी 1 2 खबर तुम्हें साफ करे तो ये पाक साफ रहता है कब्रिस्तान। तुम्हें सब भी आओ, सब का अच्छा है कब्रिस्तान और झाड़ाओं अच्छे हैं, छाँव है, लाइट का एक इंतजाम हुआ तो पूरा अच्छा कब्रिस्तान है। तुम्हें आते जाओ, तुम्हारे खबर तुम्हें साफ करो। बीजापुर शहर के केंद्रीय बस अड्डे के समीप रहे रोड डिवाइडर से एक कार भिड़ने से कार का अधिक नुकसान। आज बस अड्डे के सामने वाली रोड पर रहे डिवाइडर को कार चालक ने टक्कर मारने पर डिवाइडर और कार को अधिक नुकसान पहुंचा है। यह अच्छी बात है कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। यह मामला गांधी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार देश और दुनिया के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगी। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर भी मौजूद था। इस सनसनीखेज ऑडियो को लेकर भाजपा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि यही तो पाकिस्तान चाहता है। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था।
मुंबई में लगातार भारी बारिश से रफ्तार पर ब्रेक। जल भराव से कई इलाकों में बिगड़े हालात। मानसून की बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। इसके कारण कई जगहों पर लंबा जाम लग रहा है। ऑफिस और काम करने वाले लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की ओर से हाई टाइड आने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान शहर के पूर्वी उपनगरों में 89.30 मिलीमीटर से लेकर 92.38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मुंबई शहर में 79.66 मिलीमीटर बारिश हुई। चेंबूर और अंधेरी के कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी के सबवे में बारिश के कारण जल भराव हो गया है। इससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को इस पर दिग्विजय सिंह को घेरते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। क्लब हाउस चैट के वायरल ऑडियो को लेकर भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह को घेरा। पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वे कश्मीर को थाली में रखकर पाकिस्तान को सौंपना चाहते हैं। कांग्रेस शुरुआत से ही कश्मीर में शांति नहीं चाहती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कॉर्नवॉल में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में घोषणा की कि उनका देश अगले साल तक दुनिया को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें दान करेगा। शिखर सम्मेलन के औपचारिक सत्रों के शुरू होने से पहले मेजबान के तौर पर जॉनसन ने कोरोना वायरस महामारी पर काबू के लिए एक बड़ा कदम उठाने का संकल्प लिया। इस समूह के सदस्य देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। इस देशों के नेताओं के साथ ही यूरोपीय संघ और अतिथि देशों के रूप में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया के नेता भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। समाचार फिल्मी नगरी के। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के वैश्विक अभियान एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के सेलिब्रिटी एडवोकेट है। शनिवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अभिनेता ने बाल श्रम को पूरी तरह से बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। आयुष्मान ने कहा, बाल श्रम बच्चों के बचपन को लूटता है और यह उनके अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। कोविड-19 ने बच्चों को अधिक कमजोर बना दिया है। सरकार खासकर छोटी छोटी बच्चियों और विस्थापित बच्चों पर जोखिम ज्यादा है। स्कूलों के बंद होने और घर का माहौल गड़बड़ाने, पेरेंट्स की मौत होने और परिवार में किसी की नौकरी जाने के चलते बच्चों को बाल श्रम के रास्ते जाना पड़ता है। अंत में समाचार खेल जगत से। 15 अगस्त 2020 ये वही तारीख है जब भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर मैं पल दो पल का शायर हूँ गाने के साथ एक वीडियो पोस्ट कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद धोनी ने भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेला था। उम्मीद थी कि वहां 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वापसी करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट के स्थगित होने के बाद सारी उम्मीद खत्म हो गई और धोनी ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। जब धोनी क्रिकेट से दूर थे तो उस समय यहाँ काफी चर्चा चल रही थी कि चयनकर्ताओं के साथ उनकी अपने फ्यूचर प्लान को लेकर बात हुई होगी। चयनकर्ताओं को धोनी ने बताया होगा कि वह उनके ना खेलने के पीछे क्या कारण है, वह कब टीम में वापसी करेंगे। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भाजपा सरकार जन विरोधी सरकार है, वह मात्र राजनीति कर रही है, यूटी खादर। अजीज खान का युवती को सहारा देने का मामला जोरों पर। असंतुष्टों को झटका, येडियुरप्पा को राहत। कर्नाटक में सीएम नहीं बदलेगी भाजपा। कर्नाटक में 11 जिलों में एक सप्ताह बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। कर्नाटक 25 लाख से ज्यादा संक्रमितों ने दी कोरोना वायरस को मात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।